Good morning, dear student. Today I am going to discuss the new chapter mass, energy, equivalence, and this is the nuclear binding energy. And in this chapter, first one is a mass energy equivalence relation. As you know, according to Einstein, mass and energy are equivalent and every substance has the energy due to its mass also. एक्चुअली आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था कि एवरी बॉडी इज पोजेस द एनर्जी ड्यू टू इट्स मास ऑल्सो। हर एक बॉडी के पास अपने मास के कारण ही एनर्जी होती है। और मान लें अगर किसी बॉडी का हम m मास लें, देन mass m of a body is equivalent to the energy E which is given by E is equal to mc square, where m is the mass of that body as you know, and c is the speed of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light in vacuum. So in this way you can say, according to Einstein mass energy equivalence relation, every body is possess the energy due to its mass also, and mass m of any body is equivalent to the energy E which is given by E is equal to mc square. Now there are two terms, pair annihilation and pair production. Actually pair annihilation and pair production is the example of the mass energy equivalence relation. And as you know, the important example of mass energy equivalence are pair annihilation and pair production. So simply, if we consider the energy due to mass of one electron, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को लें और इस फार्मूले में रख के हम निकालें कि व्हाट इज द एनर्जी ड्यू टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, then the energy equivalent to mass of one electron is given by, as you know, mass of one electron 9.1 into 10 power minus 31 kg is E is equal to mc square. तो here हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को ले रहे हैं, तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर, एंड दिस विल कम्स 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 14 जूल। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितनी एनर्जी की इक्विवेलेंट है? 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 14 जूल ऑफ एनर्जी के। और जैसा कि हम जानते हैं ये जूल में आया है, और चूंकि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल, तो इस जूल को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो दिस इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 14 upon 1.6 into 10 to the power minus 13, then this answer will comes in mega electron volt, and when you will solve it, then this energy will comes 0.51 mega electron volt. It means the mass of one electron is equivalent to this amount of the energy, 0.51 mega electron volt of energy. अगर याद रखिएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो उसको 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 से डिवाइड करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में केवल बदलना हो जूल को तो उसको 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है इसलिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 से डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Positron has the same mass as that of electron. पॉजिट्रॉन का भी मास इलेक्ट्रॉन के ही मास के बराबर होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। हाँ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली यू कैन से पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and to that of the electron, and spin is opposite to the electron, and energy equivalent to mass of one positron। चूंकि mass of positron भी mass of electron के बराबर ही होता है, और ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि mass of one electron is equivalent to 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए energy due to mass of one positron is also equal to how much here? This will also equal to
0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर है। और याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन इज ए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब ये दो टर्म हो गए क्या, कि एनर्जी ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी ड्यू टू mass of one positron. By using this Einstein mass energy equivalent relation, we obtain that mass is equivalent to 0.51 mega electron volt of energy. Now there are two important terms, and that term is what here, pair production. So in pair production, when a gamma ray photon of energy at least 1.02 mega electron volt falls on a substance, it absorbed by the some nucleus of that substance and gives a pair of electron and positron. This phenomena is called pair production. इसका मतलब कोई फास्ट एनर्जेटिक गामा फोटॉन जब किसी सब्सटेंस पे फॉल होती है तो उसके किसी न्यूक्लियस द्वारा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इसके बाद वो प्रोड्यूस कर देता है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जो होता है ड्यू टू द फॉल ऑफ दिस एनर्जेटिक गामा फोटॉन ऑन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। और जैसा हमने बताया कि एनर्जी ड्यू टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एनर्जी ड्यू टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मास के कारण जो एनर्जी इक्विवेलेंट आती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब 0.51 प्लस 0.51 जिनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम यहाँ कह रहे हैं। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन के लिए इस एनर्जेटिक गामा फोटॉन की एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी इस गामा फोटॉन की तो वो पेयर प्रोडक्शन नहीं देगा। लेकिन इफ द एनर्जी ऑफ दिस गामा फोटॉन इज मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब क्या होगा, तब पेयर प्रोडक्शन तो होगा ही। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वहां से निकलेंगे, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद, that energy is given to these emitted electron and positron in the form of kinetic energy. वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जो भी एनर्जी बचेगी वो इन निकलने वाले पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी जाएगी। तो याद रखिएगा, एक्चुअली पेयर प्रोडक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। गामा फोटॉन ये एनर्जी है और दे क्या दिया हमको, मास। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू मास। सिंपली पेयर एनिहिलेशन, in pair annihilation, when an electron and positron comes near each other, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों पास आते हैं तो दे कंबाइन एंड एनिहिलेट, और कॉम्बिनेशन के बाद या कंबाइन के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस 2 गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस, और ये दोनों गामा फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पेयर ऑफ एनिहिलेशन में व्हेन वन पॉजिट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन्स कम्स नियर ईच अदर, दे एनिहिलेट बाय कंबाइनिंग टुगेदर एंड प्रोड्यूस 2 गामा फोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये मास हैं, और मास को कंबाइन करके हमने फोटॉन पा लिया। तो फोटॉन क्या है, एनर्जी है। तो कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी, और ये क्या था, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू मास। तो इस तरह से याद रखिएगा, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन इज द एग्जांपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। एज यू नो इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, ये अपने नाम से ही क्लियर है। मास डिफेक्ट क्या है कि एक्चुअली it is observed that the mass of a nucleus is always less than the mass of
कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि पूरे न्यूक्लियस का हम मास ले लें और उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास और जो न्यूट्रॉन्स हैं उन सब का मास लेके उन दोनों को जोड़ दें, उसे कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये पाया गया कि जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हम निकालते थे वो स्लाइटली कम आता था मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स से, और यही मास का जो डिफरेंस होता था यहाँ पे, दैट डिफरेंस ऑफ द मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो सिंपली इट इज गिवन, इट इज ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ ए न्यूक्लियस is always less than the mass of the constituent nucleons. Nucleons मतलब protons plus neutrons, and this difference of the mass is called mass defect. तो ये हो गया डेल्टा m। डेल्टा m का मतलब mass defect is given by mass of nucleons। nucleons का मतलब याद रखिएगा sum of टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन हैं उनका मास लेने पर ही हमको मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करने पे हमको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट। जैसे हम मान लें कि किसी भी सब्सटेंस का मान लीजिए हम कहते हैं ये है एक्स और ये हो गया जेड और यहाँ हो गया ए। इसका मतलब इसके एटम के न्यूक्लियस में, इस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन हो जाएंगे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। और मान लेते हैं एक प्रोटॉन का मास है mp, तो जेड प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड mp, प्लस न्यूट्रॉन कितना है ए माइनस जेड, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन का मास है mn, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इंटू mn। तो ये पूरा बता देगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इसमें से हम मास ऑफ न्यूक्लियस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये मास डिफेक्ट। और याद रखिएगा यही मास डिफेक्ट ही कॉज होता है एनर्जी का, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, फ्यूजन हो, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सब में जो भी निकलता है एनर्जी वो सब केवल मास डिफेक्ट के कारण ही है। तो दिस मास डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, और यही मास डिफेक्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो इस मास डिफेक्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस मास डिफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी of the nucleus which is responsible for binding the न्यूक्लियॉन्स इन स्मॉल न्यूक्लियस। और यही बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को क्या करती है, कंबाइंड की रहती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट, एंड c स्पीड ऑफ लाइट। और अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू, आपने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाला है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई मास नंबर, क्योंकि टोटल मास आर सिंपली यू कैन से ए हियर जेड प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। तो a प्लस जेड माइनस जेड करेंगे मतलब टोटल मास नंबर। तो ये a क्या बताएगा, ये जो मास नंबर आ रहा है आपका, यही क्या बता देता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकाल के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से अगर आप डिवाइड कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से किसके बराबर होता है, उसके मास नंबर के, तो वही क्या बता देगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो द डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक व्हाट आई हैव डिस्कस हियर, बिकॉज इन दिस चैप्टर ओनली दिस टॉपिक इज मेंशन इन योर सिलेबस। तो यू गो थ्रू दिस टॉपिक एंड ऑल्सो यू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम विच इज गिवन इन योर दिस चैप्टर। थैंक यू।